दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, यह बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध जताया। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसदों के निलंबन को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, विरोध जताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। भारी संख्या में विपक्षी गठबंधन के नेता इस प्रदर्शन में शामिल है और ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शरद पवार की मौजूदगी भी इसमें देखी जा रही है और तमाम विपक्ष के नेता इस प्रदर्शन में मौजूद है और केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, विपक्षी सांसद के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। No, we were ready to debate and give our point of view. The government has a brutal majority in the House and they can pass any bill they want because they have 303 members. But our point of view, our different point of view, our divergent point of view would have been recorded. But they didn't even give us the opportunity to get recorded because they have suspended all of us. But it's not as if we didn't have anything to say. We are now forced to say it in the press and put it out in other forms of media. But we would have recorded our differences with the bill. And these bills have far-reaching consequences. Particularly the new criminal bill is going to create a great gridlock in the judicial system because it's only a renumbering exercise, and some of the provisions which they have brought about are going to make it a greater police state, and the people of India are going to feel the bite and the pinch once it starts getting implemented at the police station level. They will start realizing how draconian it is. And the telecom bill gives them superpowers to control telecom companies and other digital media companies, and at the same time they're also giving, they're going to auction space spectrum. They're not going to auction it, they're just going to give it on their own basis. So there are lots of far-reaching things which are going to have grave implications to the people of India, and unfortunately they didn't allow us to record our dissent in Parliament, but we will be taking the message to the people. I like to warn the people of India that these laws are going to have very grave consequences onto their day-to-day lives. My last question would be, government is talking about the current situation of JNK. We talked about yesterday in Bhojpur, army person has been killed after the... See, they somehow portrayed abrogation of 370 is some sort of a magic pill, and once they abrogate 370, everything will become normal. Nothing has become normal. In fact, they must issue a white paper on Kashmir to say what has really improved there. Either social life has improved, or the political life improved, or is the security situation improved. They must actually give a white paper. They said so many people will go and start industries there. How many new industries have been started there? They said people from other parts of India will go and buy land there. How many people have gone and bought land and started new businesses there? They have said the security situation has improved. They must bring about a white paper to tell me what is the security situation. So abrogation of 370 was touted as some sort of a magic bill. But the results are completely different from that. The problem with this government is it spends a lot of time on propaganda and not on actual work and measuring of their actual work on the ground. तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जिस तरीके से जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है, विपक्षी सांसदों का जमावड़ा वहां पर है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही, बड़ी संख्या में वहां पर विपक्षी गठबंधन के नेता वहां पर मौजूद है। तो ये सीधे हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार जो अपडेट हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर इंडिया का गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है। सदन देश की प्रतिष्ठान है, ये सदन को तबाह मत करो। सदन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंचायत होते हैं। ये सदन में अगर हमारी बात रखने का मौका नहीं मिले तो इसको कहाँ जाए हम लोग। मोदी सरकार ने विपक्ष मुक्त संसद बना दी है। देशवासियों से सीधा सवाल है, क्या इस देश में अब प्रजातंत्र बचा है या उसका गला घोट दिया गया है?
देश की मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है, संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। 75 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हो रहा है कि 143 से अधिक, लगभग 146 सांसदों को अब लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। क्या विधायिकाएं और संसद विपक्ष की गैरहाजिरी में चल सकती हैं? आपकी बात हर बार आपको सदन में रखनी पड़ती, तो वहाँ पे अगर रखने नहीं दे रहे तो इसका बिल्कुल, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरीके का जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। क्योंकि अब पूरे 140 एमपी को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो बिल्कुल इसके ऊपर इसलिए तो यहाँ पे धरना हो रहा है, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए जब आप एमपी बनते हैं तो आपका प्रिविलेज होता है कि सदन में आपकी बात करना पड़ता है, चाहे आप उसको पढ़े या ऐसे ही बात करें, जो आपको बात करने का प्रिविलेज होता है वो हो रहा है नहीं। देश को सोचना चाहिए, करोड़ों लोगों की आवाज है वो चुने हुए सांसद। सिर्फ आपने उन 140 जो भी सांसद हैं उनको नहीं आपने खामोश किया है, आपने करोड़ों उन लोगों की आवाज को खामोश करने की कोशिश की है जिन्होंने चुनकर भेजा है, अपने मुद्दों पर बात करने को भेजा है। उन मुद्दों पर बात नहीं होती है, विपक्ष को आपने खत्म करके तानाशाही तरीकों से बिल ला रहे हैं। और draw the attention of the public to the really perilous situation facing our democracy. Never in the history of parliamentary democracy in any country anywhere in the world has ever 146 parliamentarians been expelled or suspended. It is a national disgrace. It's a blot on a country that calls itself the mother of democracy. And the world has to sit up and pay attention, which is why this rally has been convened. So what will be the course of action in the future? Course of action is to persuade the voters that if you want to save democracy, you need to bring the India Alliance into government. That's the course of action over the next few months. तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा था और आपने अभी शशि थरूर की बाइट भी सुनी, उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि वहां पर लोकसभा में बीजेपी के द्वारा जो है हमला किया जा रहा था और अब हम अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, साफ तौर पर जंतर मंतर पर ये देखा जा सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर प्रदर्शन में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं और पूरे देश भर में भी आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उसी बीच जंतर मंतर पर भी इंडिया गठबंधन का ये प्रदर्शन देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और बाइटें भी हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष के नेता के द्वारा वहां पर बयानबाजी भी की जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ भी नजर आ रहा है और अभी आपने सुना जिस तरीके से शशि थरूर के द्वारा भी साफ तौर पर यह कहा गया कि वहां पर ये लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश इंडिया गठबंधन के द्वारा की जा रही है और अब जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। भारी संख्या में ये प्रदर्शन वहां पर करने के लिए नेताएं और उनके समर्थक जो है वहां पर जुट चुके हैं। इंडिया अलायंस की ये जो बैठक हो गई थी, जो चौथी बैठक भी हुई और उसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और जमकर वहां पर नारेबाजी भी करते हुए जो नेता हैं वो नजर आ रहे थे और प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका गुस्सा फूट रहा है, बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष काफी आक्रोशित है और अब देखने वाली बात होगी कि अब इसके लिए अगला एक्शन सरकार का क्या हो सकता है। क्या ये जो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्या ये विकराल रूप भी ले सकता है। तो अब आपको ये भी हम बताते चले, जहां पर 143 जो सांसदों को निलंबन किया गया था उसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इंडिया गठबंधन के ये नेता, विपक्षी नेता जो हैं वहां पर जुटे हुए हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि भारी संख्या में वो जुटे हुए हैं वहां पर और नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। तो ये जीत सीधे हम जंतर मंतर से भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और
प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए मंच पर ये जो विराजमान है, आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद है, उनके बगल में शरद पवार भी वहां पर मौजूद है और तमाम विपक्ष के जो नेता है, इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो पूरे मंच पर विराजित है। आप देख सकते हैं और किस तरीके से उनका जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। भारी संख्या में ये विपक्षी नेता वहां पर एकजुट हुए हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जंतर मंतर से ये हम आपको तस्वीरें भी लगातार अपडेट कर रहे हैं, जो तरीके से प्रतिक्रियाएं जो विपक्षी नेताओं की आ रही है वो भी हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। जिस तरीके से उनको घेरने की कोशिश जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच लगातार ये केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब विपक्ष का जो स्वर है वो भी सुनाई दे रहा है, विरोधी स्वर वहां पर सुनाई देता हुआ भी नजर आ रहा है। विपक्ष भारी संख्या में एकजुट होकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुका है और पूरे देश भर में भी कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखा जा रहा है और यहां पर आप सीधे हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है और तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है, इस प्रदर्शन को क्या रूप दिया जा सकता है? देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उन चुनावों के मद्देनजर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसको जोड़ के देख रहे हैं। अब शीतकालीन सत्र जो संसद का था उसमें जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किया गया, किस तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब विपक्ष के जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके बीच में क्या एकता बनती है, क्या अखंडता रहती है, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके मद्देनजर इसको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलकों में एक सरगर्मी तेज हो गई है और इंडिया गठबंधन के नेताओं की मंशा है कि वो जनता तक, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके जो मायने हैं, इसके मायने बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव एक तरह से तैयार हो गए हैं चुनाव, और चुनाव प्रचारों से भी इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से विपक्ष ये भी लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका भी असर देखने को मिल सकता है? देखिए ये क्योंकि ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है और जनता जनार्दन है। हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इसमें अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उतना ही सक्षम है जितना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसकी वोट भी एक होगी और हर व्यक्ति अपने मताधिकार के लिए स्पष्ट तौर पे आजाद होता है और जिस समय वो मशीन पर पहुंचता है वोट डालने के लिए, उस समय इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अपने स्मरण में रखता है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की साक्षरता दर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अभी हम साक्षरता दर के मामले में बहुत पीछे हैं, तो तमाम अधिकार जो है वोटर वो भी अपने नहीं समझ पाता। लेकिन ये जरूर तय है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो मुकाबला है वो देखना दिलचस्प हो। जी बिल्कुल राजकुमार चौधरी, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।